Now we are coming on the last topic, that is NP completeness. Almost all the algorithm we have studied have been polynomial time algorithm, means input of the size n, their worst case running time is big of n की power k for some constant k. मीन्स जितने भी हमने एल्गोरिथम सोल्व किए हैं अभी तक, दे हैव सिंपली टेक द टाइम polynomial time. So all the problems can be solved in the polynomial time. So there is a question come in your mind whether all the problem can be solved in polynomial time. So the answer is no. There are some problem such as Turing famous halting problem that cannot be solved by any computer, no matter how much time we allow. So there are also problems that can be solved but not in the polynomial time. So generally we are thinking of a problem that are solvable by polynomial time algorithm as being tractable or easy, or there are the some problem which requires super polynomial time. These are being named as hard or intractable problem. So now we have come a class of problem which is known as your NP complete problem. NP complete problem. So no polynomial time algorithm has been discovered for an NP complete problem, nor has been anyone yet been able to prove that no polynomial time algorithm can exist for any one of them. Means till now for NP complete problem we have not solved that problem in the polynomial time. So that problem is simply known as your NP complete problem. So now we will cover one by one. So we will cover first part. There are the two type of problem which is known as your optimization problem and decision problem. I think optimization problem already covered in our syllabus. So there the first part is your decision problem. Decision problem is here given an input and a question regarding the problem is asked whether we can determine it. The answer will be in the form of yes or no. Means after solving it we have to give the answer whether it is yes or no. So that problem is simply known as your decision problem. Means जहाँ पे आपका आंसर yes या no की फॉर्म में होगा. The second type of problem is your optimization problem, जिसमें हम एक सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं. ऑब्वियस वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द बेस्ट आंसर. सो उन प्रॉब्लम को हम कौन सी प्रॉब्लम कहते हैं? ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम. द आंसर दे आर द लॉट ऑफ प्रॉब्लम वी हैव कवर्ड, दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, योर लॉन्गेस्ट common subsequence, matrix chain multiplication, all these are problem is the example of your optimization problem. So this part is, I think this term will be covered when we are discussing the NP part. So the next term is your so I will one part is there. Suppose there is any optimization problem, that optimization problem can be convert into the decision problem. Suppose we want to find out the shortest path from between u to v. So हमें शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना, बट विद हेल्प इन द डिसीजन फॉर्म वी कैन मेक इट दैट कि वेदर वी कैन फाइंड आउट ए path from u to v that consists at most k edges. So in that case the answer will be come out in the form of yes and no. So you can convert the decision problem into the you can convert the optimization problem into the form of decision problem. So next part is your, so we will cover the, I think there is a class. The first class is known as your class P. So class P is the problem which we can solve in the polynomial time. I think that is the simple term. वो प्रॉब्लम जो हम polynomial time में सोल्व कर पाएँ, उन प्रॉब्लम को
की जो क्लास होती है that is known as your class P. सो क्लास P मीन्स पोलिनोमियल टाइम में आपको प्रॉब्लम सोल्व कर पाते। आई थिंक जो भी अभी तक हमने जो एग्जांपल किए हैं वो सारी प्रॉब्लम आपकी क्लास P के अंडर आती है। तो पोलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम जिसमें वर्स्ट केस आपका इट कैन बी यूर बिग ऑफ n की पावर k where k is any constant. They are the some example of the polynomial time, that is the big of n square, big of n की power 3, big of 1 भी may be a polynomial time, big of n log n or log n. These are the some example of your polynomial time. The next part is the what is the non-polynomial time, that is the 2 की power n की power n factorial. These are the all the time is your non-polynomial time. So till now what the problem we have solved, that problem is known as your class P problem. So next term is your intractable or intractable problem. So जो आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं P क्लास की, that is come in the tractable problem. प्रॉब्लम जो आपकी P में नहीं होंगी, क्लास P में नहीं होगी, उनको हम intractable और unsolvable प्रॉब्लम कहते हैं. So these problem can be, अब इंट्रैक्टेबल एंड अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम के जिनको हम सोल्व नहीं कर पाएँ, दैट इज़ सिंपली टर्म, या फिर हम स्मॉल इनपुट के लिए किसी रीजनल टाइम पे उनके लिए सोल्व कर पाएँ, उन प्रॉब्लम को हम इंट्रैक्टेबल एंड अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम कहते हैं. अब यहाँ पे एक पॉइंट आएगा कि आर द नॉन पोलिनोमियल एल्गोरिथम ऑलवेज कर द वर्स देन पोलिनोमियल टाइम. सो इसका आंसर इफ़ आई विल से कि अगर आप n की पावर दैट इज़ ए कांस्टेंट, अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो, n की पावर है दैट इज़ सिंपली टर्म एज द ट्रैक्टेबल पार्ट, कि n की पावर कुछ पार्ट में n की पावर 2, n की पावर 3, these आर द ट्रेसेबल. बट यहाँ पे ट्रैक्टेबल, बट यहाँ पे n की पावर इट इज़ ऑलमोस्ट यूर 1 लाख, तो इट इज़ द टेक्निकल ट्रैक्टेबल, बट इसको फाइंड आउट करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है. वेयर एज अगर हम दूसरा पार्ट अगर देखें n की पावर log 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 n, सो ये एक टाइप से इंट्रैक्टेबल, टेक्निकली इंट्रैक्टेबल पार्ट है, बट इसको हम इजीली सोल्व कर सकते हैं. अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो उसका काफ़ी इजीली हम इसको का सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं. सो द नेक्स्ट पार्ट इज यूर द एग्जाम्पल ऑफ योर अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम. अब अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम क्या होती है कि ट्यूरिंग ने 1930 में ही हैज़ डिस्कवर्ड दैट दे आर द सम प्रॉब्लम जिसको हम किसी भी एल्गोरिथम से सोल्व नहीं कर सकते, उन प्रॉब्लम को हम अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम कहते हैं. तो द मोस्ट फेमस ऑफ द अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम इज नोन एज यूर halting problem. I think that term is also known to you. So in the halting problem, given an arbitrary algorithm and its input, will that algorithm eventually halt or will it be continue forever in an infinite loop? कि वो halt होगा कि नहीं होगा, that is problem is known as your halting problem. So that problem is never solvable. इस problem को हमने कभी भी solve नहीं किया, तो इस problem को हम unsolvable problem कहते हैं. They are the some example of your intractable problems. I think you know about the Hamilton path. ठीक है. So traveling salesman problem. ठीक है. तो ये जो आपकी दोनों problems हैं, that is the example of your intractable problems. I will discuss the Hamilton path in next slide. In the traveling salesman, there the graph is given. So you have to in the traveling salesman problem, the salesman have to travel all the city ठीक है with the minimum weight, minimum distance. तो वो प्रॉब्लम हमारी ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम होती है. सो ये दो प्रॉब्लम आपकी इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम है. अब यहाँ पे थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि जो आपकी इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स होती है उसको हम बेस्ड ऑन द डिफ़िकल्टी वी कैन क्लासीफाई इनटू द NP, NP कंप्लीट एंड NP हार्ड. अब ये NP क्या टर्म है, उस टर्म पे आते हैं. NP से ही आपकी NP हार्ड एंड NP कंप्लीट टर्म निकल के आएगी. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस द NP पार्ट. द क्लास ऑफ NP. ए प्रॉब्लम इज असाइंड टू बी NP. एक प्रॉब्लम को हम NP जब कहेंगे, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम, NP मीन्स NP क्लास जब कहेंगे जब उस प्रॉब्लम को हम पॉलिनोमियल टाइम में सोल्व कर पाएँ. बट वो कौन सोल्व करेगा, दैट विल बी सोल्व बाय द नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन.
कि हम उस प्रॉब्लम को अगर पॉलिनोमियल टाइम में सोल्व कर लें, तो उस क्लास को वी आर सिंपली नोन एज द NP क्लास. दैट प्रॉब्लम विल बी सोल्व बाय द नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन. तो वो क्लास आपकी क्या होगी? वो क्लास आपकी NP क्लास होगी. अब NP क्लास में फिर आपकी एक टर्म ऐड हो जाती है NP हार्ड. अब आप एक प्रॉब्लम को अगर दूसरी फॉर्म में ट्रांसलेट कर लेते हैं, ठीक है, सो ए प्रॉब्लम इज सेड to be NP hard if an algorithm for solving it can be translated into one to for solving to another NP problem. Means अगर आप एक NP प्रॉब्लम को दूसरी NP प्रॉब्लम में ट्रांसलेट कर पाते हैं, then that problem will be known as your NP hard. ठीक है, तो NP से NP hard होगा. The third term is known as your NP complete problem. तो जब आपकी प्रॉब्लम NP भी होगी, NP हार्ड भी होगी, दैट इज सिंपली नोन एज योर NP कंप्लीट प्रॉब्लम. सो ये तीन टर्म है आपकी, ऑलमोस्ट सेम है, बट इन तीनों में आपका डिफरेंस है. सो आई थिंक NP मीन्स जो पॉलिनोमियल टाइम में आपकी वेरीफाई होगी उसको हम NP क्लास कहेंगे. NP हार्ड जब हम किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अनदर NP प्रॉब्लम में ट्रांसलेट करेंगे, तो दैट इज़ द NP हार्ड. एंड थर्ड वन इज द NP कंप्लीट. जब NP भी होगी, NP हार्ड भी होगी, इसको हम NP कंप्लीट प्रॉब्लम बोलेंगे. सो नाउ दे आर द सम टर्म दैट इज द नॉन डिटर्मिनिस्टिक स्टेज क्या होती है, डिटर्मिनिस्टिक स्टेट क्या होती है. नॉन डिटर्मिनिस्टिक गेसिंग होती है कि हम रैंडमली नंबर जनरेट किया, उसके बेस पे वी आर सिंपली सो डैट कि एक आपका एक सॉल्यूशन है, सर्टिफिकेट है. द सेकेंड पार्ट इज द डिटर्मिनिस्टिक स्टेट, जहाँ पे वी आर सिंपली सॉल्व आउट कि हम इस प्रॉब्लम को सोल्व कर पाते हैं. सो आपकी जो NP एल्गोरिथम होती है वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टर्म होती है, दैट इज़ द सिंपल टर्म. ठीक है, अब बेसिकली जो आपकी NP क्लास है दैट इज़ द कंसिस्ट ऑफ द प्रॉब्लम दैट कैन बी सोल्व बाय द NP एल्गोरिथम. जो आपकी NP क्लास होगी वो सिंपली क्या होगी, वो प्रॉब्लम दैट मीन्स अगर हम NP एल्गोरिथम, जो भी एल्गोरिथम आपका NP एल्गोरिथम सोल्व कर पाए, उन प्रॉब्लम्स को, उन प्रॉब्लम की जो क्लास होगी वो क्लास क्या होगी आपकी NP क्लास. P क्लास क्या होगी, जिसको हम पॉलिनोमियल टाइम में वेरीफाई कर पाएँ. एंड यहाँ पे एक NP क्लास क्या होगी जो कि आपकी वेरीफाई होगी. आई एम क्लेमिंग द पार्ट P प्रॉब्लम जिसको हम सोल्व कर पाएँ पॉलिनोमियल टाइम में. सोलेबल. NP मीन्स इसको हम वेरीफाई कर रहे हैं कि हम पॉलिनोमियल टाइम में उसको वेरीफाई कर पाएंगे कि ये सोलेबल है या अनसोलेबल है. तो दैट क्लास इज नोन एज योर NP क्लास. ठीक है, आई एम मेकिंग इट क्लियर कि NP का मतलब नॉन पॉलिनोमियल नहीं होता. ठीक है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं. तो NP का मीन्स नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल है. ठीक है, सो एग्जांपल इज योर हैमिल्टन साइकिल. सपोज अगर हमें एक ग्राफ दिया हो, उस ग्राफ में हमें सभी वर्टेक्स विजिट करने हो, तो दैट प्रॉब्लम इज़ नोन एज योर हैमिल्टन साइकिल. तो इसके लिए अगर हम कहें कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो ऑब्वियस है एक वर्टेक्स का एक सीक्वेंस होगा. ठीक है, तो अगर मैं ये वर्टेक्स का अगर मैं सोल्यूशन देखता हूँ तो ये हैमिल्टन है, इसमें वर्टेक्स को वन टाइम ही विजिट किया है, बट इसमें दैट इज़ नॉट हैमिल्टन. इसमें आपका ये वर्टेक्स इज विजिटेड 2 टाइम्स. तो दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ योर हैमिल्टन साइकिल. अब यहाँ पे एक टर्म आती है, क्या आपकी पॉलिनोमियल जो क्लास है वो इक्वलेंट टू NP क्लास है. एक पॉइंट क्लियर करना चाहते हैं कि आपकी जो पॉलिनोमियल क्लास होती है दैट इज़ ए सबसेट ऑफ योर नॉन पॉलिनोमियल. ठीक है, दैट इज़ ए पार्ट ऑफ नॉन पॉलिनोमियल. मीन्स ऑब्वियस है हम पॉलिनोमियल टाइम को सोल्व कर लेते हैं पॉलिनोमियल टाइम में, नॉन पॉलिनोमियल में हमें वेरीफाई करना होता है. तो ऑब्वियस है जो पॉलिनोमियल क्लास होगी, P क्लास होगी, उसको हम वेरीफाई भी तो कर सकते हैं पॉलिनोमियल टाइम में. तो इसका मतलब कि आपकी जो पॉलिनोमियल क्लास होगी दैट इज़ द पार्ट ऑफ योर नॉन पॉलिनोमियल. बट देयर इज ए कम आउट, क्या NP इज़ ए सबसेट ऑफ योर पॉलिनोमियल और P. अगर हम ये प्रूव कर दें तो वी आर सिंपली से डैट सबसेट की हेल्प से, सेट की प्रॉपर्टी की हेल्प से हम ये सोल्व कर देते हैं कि P इज़ इक्वल टू NP. बट
दिस इज़ द बिग क्वेश्चन, ओपन क्वेश्चन है ये अभी तक, जिसको अभी तक किसी ने भी सोल्व नहीं किया है. सो दैट इज़ द इंटरेस्टिंग पार्ट जो कि अभी तक आपका सोल्व नहीं हुआ है. ठीक है, तो दैट इज़ ए रिसर्च पार्ट, ये इसको आप रिसर्च पार्ट भी कंसीडर कर सकते हो. सो अगर एन पी कम्प्लीट इनफॉर्मल में अगर हम कहें कि एन पी कम्प्लीट प्रॉब्लम आर द डिफाइंड एज द हार्डेस्ट प्रॉब्लम इन द एन पी. ठीक है, तो मोस्ट प्रैक्टिकली जो प्रॉब्लम्स होती हैं या तो आपकी एपी पॉलिनोमियल होगी या एन पी प्रॉब्लम होगी. ठीक है, सो द क्लास एन पी consist of those problems that are verifiable in polynomial time. So it means if we are somehow given a certificate of a solution, then we could verify that certificate is correct in the time polynomial in the size of input of the problem. For example, Hamilton circle जो problem cycle problem थी जहाँ पे एक given undirected graph था, so ये certificate would be a sequence of vertex. So we have to easily check in polynomial time. ठीक है, जो आपकी हैमिल्टन वाली प्रॉब्लम थी, तो जो अगर ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस के करस्पॉन्डेंस, दैट इज़ द सीक्वेंस, हम इस सीक्वेंस को पॉलिनोमियल टाइम में चेक कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आपकी सोल्व होगी कि नहीं होगी. तो आपकी एनपी के डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं. So we are come on the NP completeness. That part is already covered. So the next term is known as your reduction, जो कि I think जब हम NP कम हार्ड की बात की थी तो हमने इस टर्म को यूज़ किया था. तो what is that term? So reduction is the way to saying that कि one problem is easier than another problem. इसको हम reduction form में बोलते हैं. Suppose that अगर इसको जनरल टर्म में हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्रॉब्लम ए इज़ ईजियर दैन प्रॉब्लम बी, तो उसको हम सिंपली कह देते हैं ए लेस देन इक्वल टू बी. सो इफ़ वी कैन सोल्व ए प्रॉब्लम यूजिंग द एल्गोरिथम दैट सोल्व बी, मीन्स इसका मतलब क्या है कि आप ए के लिए जो इनपुट्स होगी उनको बी में जब आप ट्रांसफॉर्म कर लेते हो तो उसको हम रिडक्शन फॉर्म कहते हैं. सो सपोज करो आपने कोई एक एल्गोरिथम बनाया है, यू हैव मेक ए फंक्शन, तो उस फंक्शन के करस्पॉन्डेंस जो ए की इनपुट थी, दैट इनपुट इज़ कन्वर्ट, जो ए की इनपुट के लिए जो प्रॉब्लम थी वो आपकी अब बी के लिए इनपुट हो गई है. तो दैट इज़ यूअर, दैट पार्ट इज़ नोन एज यूअर रिडक्शन. इस टर्म को हम रिडक्शन की टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं. सो पॉलिनोमियल रिडक्शन मीन्स, रिडक्शन का मतलब कि आपने एक प्रॉब्लम को दूसरी प्रॉब्लम की फॉर्म में कन्वर्ट किया. ठीक है, इट कैन बी से डैट. So polynomial reduction is that कि given two problem A and B, we say that A is the polynomial reduction to B. तो we simply represent in this form polynomial reduction कि A less than equal to PB means polynomial reduction to B. That having two part कि if there is exit a function, वहाँ पे कोई exit करता है function जिससे कि हम जो A की input थी उसको B inputs में convert कर पाएँ in polynomial time. एंड द सेकेंड पार्ट इज द, इफ दैट पार्ट इज येस, ए के लिए अगर येस है तो बी के लिए भी अगर येस है तो उसको हम पॉलिनोमियल रिडक्शन कहते हैं. मीन्स ए के लिए जो इनपुट थी वही सेम इनपुट बी के लिए हो जाए एंड यू आर डिज़ाइन ए फंक्शन इन द पॉलिनोमियल टाइम, और फंक्शन पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर पाए. ऑब्वियस है, जो अगर आई के लिए ए की इनपुट येस है तो बी एफ ऑफ आई के लिए भी वो येस होनी चाहिए. तो दैट conversion is known as your polynomial reduction. That is the definition. So यहाँ पे we are come on the next part, that is the NP complete. So a problem is NP complete कब होगी? जब वो नॉन पोलिनोम NP भी होगी. Then if B is belongs to the NP as well as हम अगर A को B प्रॉब्लम में नॉन पोलिनोमियल में रिड्यूस कर पाएँ तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम NP कंप्लीट कहेंगे. सो दिस इज़ द टू कंडीशन ऑफ योर NP कंप्लीट. ठीक है, कि वो NP भी होगी एंड दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ योर पॉलिनोमियल रिडक्शन. तो यहाँ पे अगर केवल आपकी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मीन्स एक को दूसरे प्रॉब्लम में हम कन्वर्ट कर पाएँ, NP से बिलोंग करिए, तो
तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम NP हार्ड कहते हैं। तो इससे पहले मैंने यही कहा था कि अगर आपकी प्रॉब्लम NP हार्ड भी NP भी है तो उसको हम क्या कहेंगे, NP कंप्लीट। दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ योर NP कंप्लीटनेस। जो प्रॉब्लम आपकी NP भी होगी, NP हार्ड भी होगी, उसको हम क्या कहेंगे, NP कंप्लीट। एंड NP हार्ड कौन सी प्रॉब्लम होगी, जब आपकी ए पॉलिनोमियल रिडक्शन हो जाएगी, उसको अनदर प्रॉब्लम में रिड्यूस कर पाओगे इन पॉलिनोमियल टाइम, तो उसको हम कहेंगे NP हार्ड। सो आई एम मेकिंग क्लियर कि कोई भी नो पॉलिनोमियल एल्गोरिथम टाइम एल्गोरिथम हैज़ बीन डिस्कवर्ड फॉर द NP कंप्लीट प्रॉब्लम। ठीक है, अगर हम आपकी NP कंप्लीट प्रॉब्लम में कई प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम किसी एक प्रॉब्लम को पॉलिनोमियल टाइम में सोल्व कर पाएँ तो हम सभी प्रॉब्लम को पॉलिनोमियल टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी तक हमने किसी भी प्रॉब्लम को पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम में डिसोल्व नहीं किया है। ठीक है, अगर हम किसी भी एक प्रॉब्लम को, आपकी अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं जो कि NP प्रॉब्लम के नाम से या NP कंप्लीट प्रॉब्लम के नाम से जानी जाती है, अगर हम किसी एक प्रॉब्लम को पॉलिनोमियल टाइम में रिड्यूस कर पाएँ तो हम हर प्रॉब्लम को पॉलिनोमियल टाइम में रिड्यूस कर सकते हैं। बट स्टिल टिल नाउ there is no polynomial time algorithm has been discovered for the NP complete problem। ठीक है, so that is the main part जो कि रिसर्च से रिलेटेड है आपका ये पार्ट। ठीक है, तो that is the definition जो ऑलरेडी हम थोड़ा सा पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं कि अगर आपका P आपका पॉलिनोमियल टाइम है तो ऑब्वियस है, जो कि अभी मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं A को B में ट्रांसफ़र करूँ, अगर B आपकी पॉलिनोमियल टाइम से बिलोंग करेगी तब A B आपकी किससे टाइम से बिलोंग करेगी, पॉलिनोमियल टाइम से ही बिलोंग करेगी। अगर आपकी A B में ट्रांसफ़र होगी, A आपकी पॉलिनोमियल टाइम नहीं है तो ऑब्वियस है B भी आपकी पॉलिनोमियल टाइम में नहीं है होगी सॉल्व। ठीक है, दिस इज द सिंपली प्रूफ ऑफ द पार्ट ऑफ योर पॉलिनोमियल टाइम। ठीक है, वी हैव यूज ए पॉलिनोमियल टाइम इंडक्शन टू एल्गोरिथम ट्रांसफॉर्म ए बी ए इनटू बी, हैवन ए नोन पॉलिनोमियल टाइम फॉर द B, यूज द आंसर फॉर B एंड दैट इज द आंसर ऑफ A। अगर आप A को B को सोल्व कर पाते हो, ठीक है, यस या नो, तो वही सेम आंसर किसका होगा, आपका A का होगा। सो अगर हमें कोई सी प्रॉब्लम को सोल्व करना है कि वो NP है कि नहीं है, तो सिंपली उस प्रॉब्लम के लिए वी आर सिंपली रैंडमली कोई एक स्ट्रिंग जनरेट करो, एंड जो स्ट्रिंग हमने जनरेट किया वी विल सिंपली चेक इन द पॉलिनोमियल टाइम। अगर हम उसको पॉलिनोमियल टाइम में डिटरमाइन कर पाएँ कि वो सोल्वेबल है कि नहीं है, तो वो सिंपली प्रॉब्लम किस क्लास की हो जाएगी, आपकी NP क्लास की हो जाएगी। दैट इज़ द अगेन सेम पार्ट। ठीक है, सो दे आर नाउ आई विल डिस्कस द प्रॉब्लम वन बाय वन कि कौन सी प्रॉब्लम आपकी P क्लास से बिलोंग करती है, कौन सी प्रॉब्लम आपकी NP कंप्लीट प्रॉब्लम से बिलोंग करती है। शॉर्टेस्ट सिंपल पाथ, लॉन्गेस्ट सिंपल पाथ। तो शॉर्टेस्ट सिंपल पाथ ऑलरेडी हम ये कर चुके हैं, जिसको हमने V इंटू वी टाइम में सोल्व किया था, तो दैट इज़ सोल्वेबल इन योर पॉलिनोमियल टाइम, तो ये P क्लास से बिलोंग करती है। लॉन्गेस्ट पाथ को हम कभी भी सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कि अब हम कभी भी सबसे जो लॉन्गेस्ट पाथ अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो किस गिवन ग्राफ के लिए डिस्टेंस किसी भी बिटवीन टू स्टेशन के लिए, तो हम कभी भी लॉन्गेस्ट पाथ नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो वो किस क्लास से बिलोंग हुई, आपकी NP कंप्लीट से बिलोंग हुई। नेक्स्ट इज़ द सेम, दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ योर कि कौन सी प्रॉब्लम आपकी P क्लास है, कौन सी क्लास आपकी NP प्रॉब्लम से बिलोंग करती है। हैमिल्टन साइकिल I already covered, तो that is belong to the NP complete क्लास से बिलोंग करती है। एयूलर आपकी पॉलिनोमियल टाइम में सोल्व हो जाती है। एयूलर का मतलब कि हमें हर एज को एग्जैक्टली वन टाइम विजिट करना होता है। ठीक है, और इसमें हमें हर वर्टेक्स को एग्जैक्टली वन टाइम में विजिट करना होता है। तो इसको हम पॉलिनोमियल टाइम में सोल्व कर लेते हैं, इसको हम पॉलिनोमियल टाइम में सोल्व नहीं करते, बट उसका जो सोल्यूशन है उसको हम वेरीफाई कर देते हैं, तो इसलिए NP कंप्लीट पार्ट है। सेम द वन ऑफ द प्रॉब्लम इज द सेट प्रॉब्लम। सेट प्रॉब्लम इज एक आपके एक टाइप से आपको लॉजिकल एक्सप्रेशन दिया होता है, जिसमें आपको उसका आंसर एवल्यूट करना होता है। ठीक है, दैट मीन्स एंड और नोट जो आपके गेट्स होते हैं लॉजिकल फॉर्म में, वो आपको एक एक्सप्रेशन दिया होता है, उस पर एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डेंट जो वैल्यू होती है वो फाइंड आउट करनी होती है। सो अगर हम इस प्रॉब्लम को हम सेट प्रॉब्लम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सेट में बेसिकली फर्दर आपकी फर्दर क्लास होती है, वन इज़ द CFN,
CFA9 टर्म से आई थिंक जानते होंगे, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। तो जहाँ पे जो आपकी आई थिंक CNF फॉर्म की फॉर्म में हम एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो वो CNF सेट प्रॉब्लम के नाम से जानी जाती है। तो आपकी अगर 3 CNF की बात करते हैं, 3 CNF मतलब 3 क्लॉजेज, तो वहाँ वो प्रॉब्लम आपकी NP कंप्लीट है। अगर हम इसको 2 की बात करें तो वो आपकी पॉलिनोमियल है। सेम प्रॉब्लम है आपकी वन रिलेटेड टू द वर्टेक्स, जहाँ पे नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने कंटेन करते हैं, तो उसको हम क्लिक के नाम से जानते हैं, दैट इज़ द सबसेट ऑफ द वर्टेक्स कंटेनिंग इन योर ग्राफ, ठीक है। तो सिंपली साइज ऑफ क्लिक क्या होगा, नंबर ऑफ वर्टेक्स जो कंटेन कर रही है। क्लिक का मतलब कि जो आपकी सबसेट है वर्टेक्स के, ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर बाय एजेस इन ई, कि वो कंप्लीट ग्राफ बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर इसको मैं जनरल फॉर्म में बनाऊँ, आई थिंक कंप्लीट ग्राफ से आई थिंक ऑलरेडी यू नो द टर्म्स। तो अगर वो कंप्लीट ग्राफ फॉर्म हो रहा है तो कंप्लीट ग्राफ में जो आपके वर्टेक्स निकल के आएंगे उनको हम क्लिक कहते हैं। तो अगर आप उस प्रॉब्लम की बात करते हो क्लिक प्रॉब्लम की, ठीक है, तो डेट इज सम एग्जांपल कि 2 के लिए, 3 के लिए, नंबर ऑफ 3 के लिए सेम 2 and 3। तो आपकी जो ये प्रॉब्लम्स है दैट इज़ अगेन एग्जांपल ऑफ योर 3 जो क्लिक फॉर्म है, दैट इज़ नोन एज द फॉर्म ऑफ योर NP क्लास। तो आई थिंक आई एम ऑलरेडी कवर द प्रॉब्लम NP कंप्लीट। जो भी है आपकी प्रॉब्लम होगी NP क्लास से, जिनको हम मोस्ट डिफ़िकल्ट टर्म यहाँ पे यूज़ करते हैं टू सोल्व NP, उनको हम NP कंप्लीट कहते हैं, जिनको हम सोल्व ही नहीं कर सकते हैं। NP हार्ड के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं एटलीस्ट। एक और टर्म हम यूज़ कर लेते हैं ईजी, तो उसको एटमोस्ट टर्म से हम रिप्रेजेंट करते हैं। NP हार्ड मीन्स स्टैंड फॉर एटलीस्ट एज हार्ड एज NP। NP ईजी मीन्स एटमोस्ट एज हार्ड एज NP, ठीक है। मतलब किसी भी प्रॉब्लम को जब हम NP की बात करते हैं तो हम हार्ड टर्म के फॉर्म में कहते हैं कि वो कितनी हार्ड है सोल्व करनी। तो जब हम वो एटलीस्ट टर्म अगर हम यूज़ करें तो उसको हम NP हार्ड कहेंगे। अगर हम एटमोस्ट कहें कि ये एटमोस्ट NP की तरह मुश्किल है बट तो उसको हम NP ईजी कहते हैं। NP इक्वलेंट इज इक्वलेंट टू योर NP, ये कुछ टर्म है कई बार पूछी जाती है। यहाँ पे 2 प्रॉब्लम्स हैं, दैट इज एग्जांपल ऑफ NP कंप्लीट एंड NP हार्ड। सो प्लीज़ नोट डाउन कि हैमिल्टन पाथ इज योर NP कंप्लीट एंड ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम आपकी NP हार्ड का एग्जांपल है। सो इस पार्ट में हमने डिस्कवर्ड किया है, ये थियोटिकल पार्ट था, ठीक है। अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल है इस चीज़ को, बट आप इसी टर्म में इसको याद रखो कि कौन सी प्रॉब्लम आपकी पॉलिनोमियल प्रॉब्लम है, कौन सी प्रॉब्लम आपकी NP प्रॉब्लम है। तो कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ NP है क्या, कितने टाइप है, कितना उसको फर्दर क्लासीफाई कर देते हैं, कौन सी प्रॉब्लम आपकी NP है एंड कौन सी प्रॉब्लम आपकी NP नहीं है, ठीक है। आई थिंक दैट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ आवर पार्ट। थैंक यू।